میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں شمال مغربی یورپ کے ایک انتہائی خوبصورت اور امیر ترین ملک ناروے کی۔ لیکن افسوس ہے ان نارویجن لوگوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے اتنے خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین سے نوازا ہے، لیکن یہ بے شرم لوگ اپنے رب کے سب سے پیارے نبی اور حبیب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور افضل ترین کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے کام سر انجام دیتے ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کے لیے سیر و سیاحت ہی نہیں بلکہ اسپیشلی ویژن یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جسے اللہ رب العزت نے ہر قیمتی چیز سے مالا مال کیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں۔ آج میں آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کو نہیں کہوں گا، بلکہ آپ سے التماس کروں گا کہ آپ سب دوست ناروے سے منسوب ہر چیز کا بائیکاٹ کریں۔ پاکستان میں موجود ٹیلی نار موبائل نیٹ ورک بھی ناروے کی ملکیت ہے۔ دوستو، آپ چاہے کوئی بھی نیٹ ورک استعمال کر لیں، لیکن ٹیلی نار کا استعمال چھوڑ کر محب اسلام ہونے کا ثبوت دیں۔ اور میری حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ٹیلی نار کمپنی کو بند کر کے ایک اسلامی ریاست ہونے کا دعویٰ سچا کر کے دکھائیں۔ دوستو، ناروے شمال مغربی یورپ میں واقع ایک آزاد ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناروے کا کل رقبہ 3,85,207 مربع کلومیٹر ہے، جو اپنے رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 67ویں نمبر پر آتا ہے۔ جنوری 2019 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق ناروے 54,46,780 افراد کی آبادی کے ساتھ دنیا میں 119ویں درجے پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر اوسلو ہے، جس کا کل رقبہ 454 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر میں ناروے کی 10 لاکھ سے زیادہ آبادی رہائش پذیر ہے۔ ناروے کا پرچم سرخ رنگ پر مشتمل ہے، جس میں نیلے اور سفید رنگ سے کراس نشان بنایا گیا ہے۔ اس پرچم کو 13 جولائی 1821 میں اپنایا گیا تھا اور اس کا ڈیزائن بنانے کا اعزاز فیڈرک میلٹزر نامی شخص کو حاصل ہے۔ ناروے کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف ناروے ہے۔ اگر ناروے کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے ہمسایہ ممالک میں سویڈن، فن لینڈ، روس، ڈنمارک، بحر اوقیانوس اور بحر اسود اپنے وسیع و عریض ساحلوں کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو، اگر تاریخ کے آئینوں میں جھانک کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ناروے آج سے 20,000 سال پہلے ایک برف کے وسیع و عریض علاقے کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو گلیشیئر کی صورت میں نظر آتا تھا، اور آج سے 10,000 سال پہلے موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی برف پگھلنا شروع ہوئی، اور یوں ناروے کا علاقہ برف سے آزاد ہو کر مختلف جھیلوں، پہاڑوں اور میدانی شکل میں سامنے آیا، اور انسانوں نے یہاں پر رہائش اختیار کرنا شروع کی۔ یہ لوگ ماہی گیری اور جانوروں کے شکار سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے لکڑی، پتھر اور ہڈیوں سے ہتھیار بنانا شروع کیے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر مختلف جزیروں سے ہوتے ہوئے روس کے راستے اس جگہ آئے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں میں بنی غاروں اور کھال سے بنے خیموں میں رہتے تھے، اور پھر حالات بدلے اور ایک وائکنگ قبیلے کا دور شروع ہوا۔ اس قبیلے نے سن 800 سے سن 1000 تک ناروے پر حکومت کی۔ اس وقت ناروے ملک نہیں بلکہ کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ تھا، اور ہر ریاست کا اپنا ایک حکمران ہوا کرتا تھا۔ 11ویں صدی میں ناروے کے اندر عیسائی مذہب کا آغاز ہوا۔ 14ویں صدی میں ڈنمارک نے ناروے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کیا، جس کی بنیاد پر سویڈن، ڈنمارک اور ناروے کا آپس میں اتحاد ہوا۔ 1814 تک یہ الحاق قائم رہا، اور یہی سال ناروے کی تاریخ کا اہم سال تھا۔ اسی سال ناروے نے اپنا دستور لکھا، جس میں ڈنمارک کو علیحدہ ہونا پڑا، جبکہ سویڈن اور ناروے کا اتحاد برقرار رہا۔ 1905 میں سویڈن اور ناروے کا یہ الحاق بھی ختم ہو گیا، اور یوں ایک آزاد ناروے کی بنیاد رکھی گئی۔ ناروے میں پہلی مرتبہ آزاد بادشاہت کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، اگر ناروے کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ناروے دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں اگر آپ کوئی بھی کتاب شائع کرتے ہیں تو سب سے پہلے حکومت آپ سے 1000 کاپیاں خرید کر ملک کی مختلف لائبریریوں میں رکھوا دیتی ہے۔
नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 2017 में FM रेडियो की सर्विस को खत्म करके पूरे मुल्क में डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाया था। नॉर्वे की जेलें दुनिया की सबसे लग्जरी जेलें मानी जाती हैं। ये जेलें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। जेल के अंदर कैदी को बेड, AC, अटैच बाथरूम, स्विमिंग पूल, वॉकिंग प्लेस और यहां तक कि इंटरनेट की सहूलत भी फराहम की जाती है। कुछ साल पहले एक कैदी की जेल में मौत होने की वजह से नॉर्वे हुकूमत ने कैदियों की सजा को 21 साल तक महदूद कर दिया था। एक बार नॉर्वे का जहाज एक शराबी ने अगवा कर लिया था, जिसने मुज़ाकरात के बाद सिर्फ चंद लीटर शराब के इवज जहाज वापस कर दिया था। 2011 में मुल्क में मक्खन का बहरान पैदा हुआ था, जिस वजह से एक पाव मक्खन $50 का मिलता था, यानी पाकिस्तानी 7,775 रुपयों में। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बहुत बड़े बड़े स्मगलरों ने मक्खन की स्मगलिंग शुरू कर दी थी। नॉर्वे दुनिया का दूसरा सी फूड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और दुनिया में सबसे बड़ा साल्मोनिया मछली एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी है। नॉर्वे में तेल और गैस के वसीअ ज़ख़ायर मौजूद होने के बावजूद मुल्क में गैस बहुत ज़्यादा महंगी है। नॉर्वे में मौजूद गाड़ियों की आधी से ज़्यादा तादाद बिजली पर चलने वाली गाड़ियों की है। मुल्क में तकरीबन 20 कुदरती दरिया नॉर्वे की सरजमीन को सैराब करते हैं और इन्हीं दरियाओं पर डैम बनाकर मुल्क की ज़रूरत की 99% बिजली पैदा की जाती है। नॉर्वे में तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बिल्कुल फ्री हैं। शायद यही वजह है कि मुल्क में ख्वानदगी की शरह 100% के करीब है। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसमें जहन्नम नामी एक कस्बा मौजूद है। अगर आप दुनिया में जहन्नम की सैर करना चाहते हैं तो आप नॉर्वे के इस हेल नामी कस्बे में जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। नॉर्वे यूरोप का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। ये मुल्क दुनिया में करप्शन फ्री मुमालिक की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आता है। शुमाली नॉर्वे के एक गांव रोजिया में 175 दिन तक सूरज नजर नहीं आता। इस गांव में 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। नॉर्वे में एक थ्रमसो नामी जजीरा है जहां 24 घंटे सूरज चमकता है। इस जजीरे में मशरक और मगरब का तयन करना मुश्किल हो जाता है। नॉर्वे में वाक़ जोकन वादी ऐसी जगह है जो बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में वाक़ है, जो इंतहाई गहराई में मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर साल में 6 महीने तक सूरज नजर नहीं आता और वादी में सूरज की रोशनी पहुँचाने के लिए बड़े बड़े आईने लगाकर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वादी में पहुँचाया जाता है। सियाहत के हवाले से नॉर्वे इंतहाई खूबसूरत और हसीना ज़मीन मुल्क तस्वर किया जाता है। मुल्क का सारा साल औसत दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड तक होता है। नॉर्वे के लोग अपने मरने से पहले अपनी कब्र की ज़मीन खुद ही खरीद करते हैं। नॉर्वे के लोगों का रहन सहन दुनिया भर में सबसे बेहतरीन माना जाता है। नॉर्वे के बाशिंदे नस्ली एतबार से जर्मन, वस्ती यूरोपियन, मशरक़े वस्ता, अफ्रीका और एशिया से आए तारकीन वतन से ताल्लुक़ रखते हैं। एक सरकारी तहकीक के मुताबिक नॉर्वे की 86% आबादी एक ही वालिदैन की औलाद हैं। नॉर्वे के लोगों में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई मजहब के एक शाख लोथरा की पैरवी करने वालों की है। इस्लाम मुल्क में दूसरा बड़ा मजहब है। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में यहूदियत के पैरोकारों की तादाद सिर्फ 819 थी, जबकि हिंदू मजहब को मानने वालों की तादाद 5,900, सिख मजहब के पैरोकार 3,000 अफराद पर मुश्तमिल थे। नॉर्वीजन और सोमी नॉर्वे की 2 सरकारी जुबानें हैं। मुल्क की 95% आबादी नॉर्वीजन जुबान को अपनी मादरी जुबान की हैसियत से बोलती है। दीगर बोली जाने वाली जुबानों में स्वीडिश, बोकमल, डेनिश, जर्मन, इंग्लिश, फ्रांसीसी और हिस्पानवी मुल्क की मकबूल जुबानों में शामिल हैं। नॉर्वे के रिवायती खानों में दूध से बनी अशिया, अचार, मछली और आलू से बनी फ्लैट ब्रेड है, जिसमें मक्खन और चीनी भी शामिल की जाती है। खेल को नॉर्वे की सकाफत में मरकजी हैसियत हासिल है। मुल्क का सबसे मशहूर और ज्यादा खेला जाने वाला खेल फुटबॉल है। मुल्क की दीगर मशहूर खेलों में हैंडबॉल, आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग शामिल है। नॉर्वे में 92,946 किलोमीटर पुख्ता सड़कों का नेटवर्क मौजूद है।
जिसमें 464 किलोमीटर मोटरवेज शामिल हैं, जबकि 4114 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क भी मौजूद है, जिसमें 242 किलोमीटर डबल ट्रैक मौजूद हैं। नॉर्वे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कुदरती तेल बरामद करने और गैस का तीसरा बड़ा बरामद कुनिंदा है। मुल्की मईशत का इन्हसार तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की एक्सपोर्ट पर मुनहसर है। फिश इंडस्ट्री को मुल्की आमदनी में दूसरा दर्जा हासिल है। नॉर्वे के कुदरती वसैल में कैल्शियम कार्बोनेट, इमारती पत्थर, नेफ्लीन साइनाइट, आयरन और निकल सरे फहरिस्त हैं। नॉर्वे की कुल जीडीपी 397 बिलियन यूएस डॉलर है। नॉर्वे की करेंसी को नॉर्वेजियन क्रोने कहा जाता है और एक नॉर्वेजियन क्रोने पाकिस्तानी रुपयों में 16.89 रुपयों के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 7.80 रुपये और बांग्लादेशी करेंसी में 9.24 बांग्लादेशी टका बनते हैं। नॉर्वे का पाकिस्तान से फासला 5522 किलोमीटर है। नॉर्वे के वीज़े के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं। पर्पल हैथर मुल्क का कौमी फूल है। वाइट थ्रोटेड डियर कौमी परिंदा और दी मोसे कौमी जानवर है। नॉर्वे वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +47 और डोमेन नेम .no है। दोस्तों, ये थी नॉर्वे के बारे में एक मुख्तसर मगर खूबसूरत सी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर किया करें। लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस दोस्त फारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।